انہیں وعدہ کیتا ہے رزق دا، انہیں رزق دا وعدہ کیتا ہے، لیکن ہم اس ٹینشن سے باہر نکل سکے نہیں، اور جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے حضرت۔ نماز کوئی ٹینشن نہیں، قرآن کوئی ٹینشن نہیں، ذکر و اذکار کوئی ٹینشن نہیں، حلال حرام کوئی ٹینشن نہیں، قطع تعلقی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے۔ مولا مرتضیٰ اپنے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کوئی چاہنے والا گزرا، اس نے روتے دیکھا مولا پاک کو، کھڑا ہو گیا، پوچھتا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ پاک علی تو ناراض ہو سکتے، بلکہ علی تو وہ ہے میرے محبوب، فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں مانگتے ہو، میرا علی وہ ہے جس کو جنت مانگتی ہے۔ جنت علی کی مشتاق، جنت علی کی مشتاق ہے، رو رہے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ نہیں حضرت، اللہ علی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا۔ حضرت کی حضور کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا، ہم ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اللہ خوش ہے، اللہ ناراض ہے، حضور خوش ہیں، حضور ناراض ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ ورسولہ احق ان یرضوا، سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دا کہ انہوں نے راضی کیتا جائے۔ اس لیے حضرت میری گزارش ہے، بڑے کناں دے مزے لے لے کچھ ہونا ملا لے پاسے آئیے۔ آج ہم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ حضرت کسی شخصیت کو بولنا بہت سوکھا کام ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہونی کہ کوئی ناراض ہو، کوئی اس طرح کی، اللہ سب سے سوکھا ٹاپک ہے، بولتے جاؤ بولتا جاؤ، سارا راستہ میں کتاب پڑھتا آیا ہوں، بہت سوکھا ٹاپک۔ لیکن چلو میں بس ایک دو بات کروں گا اور کچھ اپنے حالات سامنے رکھوں گا۔ کم و پیش آپ نے 70 کے قریب کتابیں لکھی، 19 سال کی عمر میں آپ نے تدریس کا آغاز کیا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ بریلی شریف میں صدر مدرس تھے، کچھ عرصے کے بعد آپ صدر، ہم جن کے ماننے والے ہیں نا حضرت وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ، لیکن ذرا ہمیں دیکھیں کہ ہم نے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے۔ میں حضرت ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے ایسے مدرسین کو جانتا ہوں، 50 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، کتاب کی حاجت ہی نہیں ہے، پوری کتابیں یاد ہیں۔ ایسے ایسے مدرس کہ سراجی جیسی مشکل کتاب زبانی یاد ہے، 50 سال ہو گئے سراجی پڑھانے ہیں، نحو میر، شرح جامی، ریاض الصالحین، شرح میت و عامل، عقائد نسوی، یہاں تک کہ بخاری شریف تک یاد ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت جی، ان کے شہر میں بھی ان کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نہ علم سے پیار کیا نہ علم والوں سے پیار کیا۔ 77 سال تو حضرت ہو گئے، ہمارے اسٹیجوں پہ موضوع ایک چل رہا ہے، کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو بھی ادا الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ گفتگو کوئی پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جننے ننگے تھے، جننے گالا کڈن والے تھے، جننے بے نماز، سارے ولی بن گئے تھے، کیونکہ ایک آیت میں شان ولایت اور اگلی آیت میں معیار ولایت۔ شان ولایت تو بیان ہوا ہے، معیار ولایت کس کس کو ہم نے ولی بنا دیا اور کون کون ولی بن گیا، جس کو ولی کی واؤ کی کونے کی بھی ہوا نہیں لگی ہے، سارے ولی بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ دس یہ نہیں جڑا ولی ہوئے گا ایمان والا بھی ہوئے گا اور اللہ کو ڈرن والا بھی ہوئے گا، اور جو ولی ہیں حضرت ان کا پرسان حال ہی کو۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عالم اور ایک عابد کا تذکرہ کیا گیا، آپ نے فرمایا تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص، یہ نہیں کہا جیسے میری فضیلت ابو بکر پہ ہے، جیسے میری فضیلت عمر پہ ہے، جیسے میری فضیلت عثمان پہ ہے، جیسے میری فضیلت علی پہ ہے، جیسے میری فضیلت فاطمہ پہ ہے۔ فرمایا عالم کو عابد پہ ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ۔ دیکھ لو کیا علماء کو پردانے آ رہے۔ میں اس دن ایک پروگرام میں اسی طرح بیان کرنے گیا تو سٹیج پہ ایک صاحبزادہ صاحب بھی بیٹھے تھے، جن کے پاس صاحبزادہ صاحب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا،
وہ ساتھ ایک شیخ الحدیث بیٹھے تھے جن کے شاگردوں کی تعداد شاید ہزاروں میں ہو، لیکن انہوں نے کو پوچھنا ہی نہیں دیا، سب کی توجہ کا مرکز صاحبزادہ صاحب۔ حالانکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو، تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص۔ فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی، جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ پیراں دیاں موجاں نے تے عالماں نوں اسی کمیٹیاں تو پا جڑے، عالماں نوں اسی کمیٹیاں دے ٹا چاڑ چڑے، انہوں نے پھر وہ کیتی ہے کہ بس چپ بلیے۔ میں ہمارے کیسے بزرگ ہیں حضرت، کمال عالم دین ہے، عبارت کیا کہنے، درس و تدریس کیا کہنے ہیں، کچھ جانتے ہی نہیں ہے۔ مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کبھی اس سائیڈ پہ جاؤں تو میں حضرت کی اقتداء میں کو نماز پڑھوں۔ میں گیا جون تھا پچھلا یا مئی تھا، دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، میں نے حضرت کی اقتداء میں نماز ظہر پڑھی، پڑھ کے میں اجازت دے کے نکلنے لگا تو مجھے فرمانے لگے آج تا ڈیلی نا وہ انہوں نے کوئی لفظ بولا میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، گلا ہے۔ میں نے کہا حضور حکم۔ فرمانے لگے اماں جی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم بھی کسی کوٹھی میں رہتے تو مصباحی سامنے آنا تھا، کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں تو اس لیے مصباحی صاحب ملے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا حضور مسجد کھلوتا ہوا نواسی تے عمران خان بھی بلائے تو شاید اینی خوشی نہ ہوئی جنی خوشی منوت تے جان دی ہوئے۔ ایک عالم کا گھر ہے، پردہ ہے، حجاب ہے، تو میں تو خود کبھی گزارش نہیں کی کہ سانو ہی حضور کدی اپنا پرونا بڑھاؤ، سانو ہی کدی ہے شرف دو۔ فرمانے لگے چلیں آئیں، پھر حضرت آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا، چھت پہ گھر تھا۔ گھر کیا تھا شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا، کمرہ کیا تھا کمری تھی، سین کیا تھا نکی ساری سینی تھی۔ اب کیونکہ چھت پہ کمرہ تھا، پنکھا تو لگا تھا لیکن ڈائریکٹ چھت پہ دھوپ پڑ رہی تھی تو پنکھا ہوا دینے کے بجائے آگ ہی پھینک رہا تھا۔ حضرت چلے گئے کو میرے لیے کو پانی شانی لینے، مجھے اپنی گاڑی اپنا گھر یاد آیا۔ میں نے کہا واہ سنی تسی ایڈے بے ذوقے ہو کہ تھاڑے چ میرے ورگے لوگ مشہور نے۔ اصل وقت ساڈے ذوق دا پتہ لگا کس کس طرح دے بندے ساڈے سنیاں چ مشہور نے۔ اتنا بڑا عالم ہے کسی کو پتہ ہی یہ بھی کوئی ہے۔ میری آنکھوں سے تو آنسو آ گئے تو حضرت اتنی دیر میں واپس آ گئے۔ وہ مجھے روتا دیکھ کے تھوڑے سے اب گھبرا کہ حضرت خیر ہے؟ میں بس حضرت رونا آ گیا۔ ہوتا ہے نا کوئی کمیٹی کا گلہ کیا ہو، کوئی لوگوں کا گلہ کیا ہو، کچھ بھی نہیں۔ مجھے آگے سے فرمانے لگے مصباحی صاحب اب خود نہیں اپنے بیانات میں کہتے وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت خیر والی یہ تھے إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ کیونکہ حضرت علم اور علماء سے پیار ہی نہیں کیا، اس لیے یہ شعبہ اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔ حضور مدرس نہیں لب رہے، پہلی گل تو مدرسے کوئی نہیں، جو مدرسے ہے نا تو مدرس کوئی نہیں، کیونکہ سارے کہتے ہیں بھائی چنگا نات ہاں بن جو کم از کم گھنٹے کا 50,000 تو لب جاتا، یہ تو پورا مہینہ پڑھانا تو بعد 12,000 تو پڑھا جاتا۔ ارے صاحب مسجد میں بیٹھا ہوں، میں اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، 5-6 کیمرے لگے ہیں، بعد میں احباب ناراض ہوں کہ حضرت آپ نے مارا کیا۔ اتنے اتنے بڑے نام ہیں مدرس، شعبہ زوال کا شکار، کہ نہ علم سے پیار کیا، نہ اعلیٰ حضرت علم والے، مفتی اعظم ہند علم والے، صدر الشریعہ علم والے، نام کن کا لیا اور کیا ہم نے کیا ہے؟ قوالیاں تے نعتاں تے بس سارے پیسے لگا دیے اس پہ۔ میں راستے میں دیکھ کے آیا ہوں فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، پنجاب کالج، اسپائر کالج، ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو، ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو۔ میں ظاہر ہے جی سیالکوٹ ہے قبلہ، بڑا امیر شہر ہے، اور میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں میرے پیچھے سارا فیکٹری ایریا ہے، فیکٹری زون ہے سارا میرے پیچھے، جمعہ ادھر ہی پڑھتے ہیں۔ جب کبھی دل دکھا ہو کسی حوالے سے میں گفتگو کروں، چلو ان کی بڑی مہربانی ہے، اربوں خربوں پتی ہیں، کبھی کو آگے سے اٹھ کے بولا نہیں، سن لیتے ہیں، میری محبت والی جھڑکیاں کھا لیتے ہیں۔ میں جب کہتا ہوں کہ یار امیر لوگ اپنے بچے کو عالم بنائیں،
इस वक्त कोई नहीं बोलता, चले जाते हैं, लेकिन हजरत पता क्या करते हैं, फिर जाके ना, नंबर तो सबके पास मेरा है, फिर अपनी फैक्ट्री में बैठ के ना अपने अपने बच्चों के स्कूल की ना वो तस्वीरें मुझे सेंड करते हैं कि हजरत जरा साढ़े बच्चे का स्कूल देखो, 12वीं इमारत देखो, क्लासरूम देखो, नाल बाग वेखो, बाग से बगे लगे झूटे वेखो, क्लासरूम च एसी वेखो, क्लासरूम का फर्नीचर वेखो, थले जनाब जेडे मैट पे ने वो वेखो। और आगे से कहते हैं हजरत अगर आपके पास भी कोई ऐसा मदरसा है तो बताइएगा, हम अपने बच्चों को भेज देते हैं। तो क्या कहूँ कि सुनिया ने सारे पैसे नाथ खाना दे जड़े। अल्लाह तुसी टेंशन ना लवो, कैमरे च मैं आना, तुसी ते आना ही नहीं, जो नाथ पेगा मेरे पीछे पेगा, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਡਾ ਡਰੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਕੀ ਕਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ मदरसियां ली आई कोई नहीं। ये जिनके नाम पे आज हम बैठे हैं 70 के करीब किताबें लिखी हैं। आला हजरत की वो किताबें जो अरबी में थी उनका उर्दू में तर्जमा किया, और आला हजरत की वो किताबें जो उर्दू में थी ताकि अरब उलमा भी उससे मुस्तफीद हो सके, उनको उन्होंने अरबी में कन्वर्ट किया। ये जिनके नाम पे हम बैठे हैं सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला, जो किताबें अरबी में थी उर्दू में, और जो उर्दू में थी उनको अरबी में। लेकिन असी देखो इल्म ते उलमा ने की कीता, हमने इल्म और उलमा के साथ क्या जी बड़ी बड़ी बहुत बहुत बड़ी महफिल नात है, 2.5 करोड़ 3 करोड़ 3.5 करोड़ 4 करोड़ हजरत साहब खर्चा आ रहा है जी एक महफिल का, इतनी इतनी बड़ी महफिल नात है। कभी हजरत साहब मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी किसी ने कोई फैसलाबाद में, सियालकोट में, गुजरांवाला में, लाहौर में महफिल नात करवाई हो तो उसके लिए चंदा मांगा हो। ऐसा पूरा कुरान सुना के हाफिज नूं 30 35 40 हज़ार देना हुंदा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। 4 करोड़ आप बिल्कुल टेंशन ना ले, कैमरों के सामने मैं हूं, जे किसी ने टकरना मैनू टकरेगा, तुसी ना टेंशन लो, तुसी चिल बैठो सारे। मर जाना हजरत, कल हुजूर को क्या जाके मुंह दिखाएंगे, इनसे डरते हैं हम या हम अब दर्द भी ना अपना बोले, हम अपना रोना भी ना रोए। अल्लाह मेरा अच्छा एक मेरा मदरसा ही कोई नहीं, उन्होंने ना मेरा है चल नहीं रहा तो मैं तां रोन रहा, मेरा मदरसा ही कोई नहीं। और भी आप सुन ले, हो सकता मेरा है तो चलन ही नहीं डया था तो मैं तां रोन डया था, मेरा है ही कोई नहीं, मैं तो जो है मैं तो उनके लिए रो रहा हूँ। हजरत तो खुदा का वास्ता प्यार करो अपने इदारों के साथ। हो हम जिनके मानने वाले हैं वो इल्म वाले थे, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया वाले नहीं थे वो। फतावा रज़विया शरीफ मुंह बोलता सबूत है कि मेरे आला हजरत का मिजाज क्या था। हजरत फतावा रज़विया शरीफ इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि फिक्र रजा है क्या हजरत। लेकिन क्या है हजरत साहब, तवज्जो की थी, कोई तवज्जो नहीं। ऐसे ऐसे बड़े नाम हजरत साहब गुमनाम ही रह गए, जानना ही नहीं किसी ने। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा हजरत, बाजी इल्म वाले पास हजरत इल्म की तरफ नहीं आए, उलमा की तरफ नहीं आए, उसका नतीजा क्या निकला, 77 साल गुजर गए, हमें रोटी भी नहीं खानी आती है। ये तो हजरत तब कुछ मिजाज बदल गया ना कि अब मैरिज हाल में खाना हर बंदे के सामने आता है, और आपको पता है जब तक खाना सामने नहीं आता था क्या हुआ करता था। बड़ी देर के बाद एक गांव में जाना हुआ, एक निकाह पे, मैं हालांकि जाने लगा लेकिन उनका नहीं, शादी खा के जाओ, खाना खाना है आप, तो जाना पड़ा मुझे भी हजरत। तो वो पुराना स्टाइल था हजरत, खाना दरमियान में रखा था, आपने खुद ही उठ के जाना। वो खीर भी पड़ी थी, अल्लाह आपको पता है हजरत मीठा सबसे एंड पे खाते हैं, लेकिन देख के दुख हुआ, लोगों ने सारे से पहले मीठा ही पाया कि बाद नहीं लबड़ा। मीठा इतना खाते हैं बस, अगर हम घर में खाना खाएं, किसी दावत पे जाएं तो जो मीठा डालने के लिए वो आपको बर्तन दिया जाता है वो कितना का होता है, इतना मीठा, इतना बस खाने वाली चीज है। लेकिन देख के दुख हुआ, हर बंदे ने हजरत साहब थाली भर ली, खाना भी एंड पे था, खाना भी इतना इतना था, लेकिन क्या है तरबियत ही नहीं हुई। बड़े बड़े प्रोग्राम, लेकिन सारी रात शेर व शायरी हुई है। उसका नतीजा क्या है, 77 साल गुजर गए, हम अभी तक गिलास से संगली नहीं उतरवा सके। कौम को इतना ही ज़हन मिल जाता कि ओ चलो चोरी दे
ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲਾਸ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਹ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ पीना है। इस गिलास में छेड़ना 77 साल गुजर गए हजरत, आज भी मस्जिद में भी जूती महफूज है कि चलो कम से कम इतना ही देन बन जाता। चोरी बाहर भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन रब दा घर है, इत्थे ते कदी भी करनी। वजह क्या? हमारे बड़े कुछ थे लेकिन हम आगे से बन कुछ गए। नाम उनका लिया लेकिन काम उन वाला किया। इसीलिए तो आला हजरत इकबाल रोए, इकबाल ने कहा थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, वो कुछ तुम कुछ, उनका किरदार क्या तुम्हारा किरदार क्या। इसलिए हजरत दीन दी तरफ आओ, कुरान दी तरफ आओ। केड़े केड़े रोने मेरे आला हजरत ने 1 महीने में कुरान याद किया, बिठा के हजरत पूरे कुरान का तर्जमा लिखवा दिया। हुजूर गौसे पाक सारी रात एक कुरान तिलावत, पर मैं 14 साल हर रात एक कुरान तिलावत करता। लेकिन हजरत साहब यहाँ क्या हाल है, हमारा क्या हाल है? पूरी महफिल में सिर्फ एक बार कुरान पढ़ा जाता है। सफरी बंदा होना सड़कों पे नजर पड़ती है, फ्लैक्स में क्या लिखा है, बंदों के कलाम पढ़ने के लिए बंदे कितने आ रहे हैं 7, और अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए बंदा आ रहा है सिर्फ 1। जब ऐसा स्टेज वालों ने कुरान के साथ सिर्फ इतना ताल्लुक रखा तो फिर इनसे क्या गिला। भूल गए, और इतना भूले कि लैटरीन में लाखों की टैली लगी। लेकिन नजर जी भूल गए, किसको भूले? कब्र को भूल गए, मरना भूल गए। बाबा साहब ने कहा था कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश माल चले, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चले, कोई भुल गया मकसद आ बंदा, कोई करके मकसद अल चले। यार फरीदा ये ते सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चले। लेकिन अदर जी अंदर वाले क्यों कौन बनाए, ये मनदा ही नहीं है, ये नहीं मनता, ये कहता मैं कि जाना है, मैं तो इत्थे ही रहना। फिर बाबा साहब ने लिखा और बिल्कुल कमाल लिखा है। आप फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी फुली, कोई मिट्टी फुली ने, कोई काटन का सूट पा के मिट्टी मिट्टी नहीं रही, कोई गुल अहमद का सूट पा के मिट्टी मिट्टी नहीं रही, कोई किसी महंगे जे ब्रांड की जुत्ती पा के मिट्टी मिट्टी नहीं रही। नहीं इधर जी मिट्टी है भाई जी, और फिर मिट्टी भी नहीं खाली, गंदी मिट्टी है। या इस वक्त कौन सा ऐसा बंदा बैठा है जिसकी आंतों में पखाना नहीं है? कौन सा यह बंदा बैठा है जिसके मिसाने में पेशाब नहीं है? कौन सा बंदा यहाँ ऐसा बैठा है जिसके पित्ते में सुफरा नहीं है, जिसकी तिल्ली में सौदा नहीं है, जिसके फेफड़ों में बलगम नहीं है, जिसकी रगों में खून गर्दिश नहीं कर रहा? हमसे ज्यादा भी कोई गंदा है? मैं अक्सर जी बैठ के सोचता हूँ माल का पता नहीं इत्थे केड़ा टक्कल ला छड़े कि अंदर दी बो बाहर नहीं आती है, पता नहीं इत्थे केड़ा टक्कल लाए कि अंदर दी बो बाहर नहीं आती। तो सुलेमान मिसबाई है नहीं कबूल है कि फिरंडे है, जे बाहर आनी शुरू होए तो सुलेमान मिसबाई अपनी बोना आप ही मर गए, पता नहीं की लेकिन ए असल। इसलिए मेरे हकीम साहब फरमाया बाबा शीशे दे भुलेखे च ना, शीशा झूठ बोल दे, जे अपनी असल वेखनी है तो कदी लैटरीन च बह के वेख, तेन पता लगे तू है कि तेन उन्हें इज्जत दे छड़ी। लेकिन होया कि वेख फरीदा मिट्टी फुली, उन्हें पैसा दिता सी फुल गए, उन्हें पुत्र दिते असी फुल गए, उन्हें सीट दी असी फुल गए, उन्हें इज्जत दी असी फुल गए, उन्हें ओहदा दिता असी फुल गए। लेकिन बाबा साहब कहते कि ने वेख फरीदा मिट्टी फुली, वेख फरीदा मिट्टी फुली, मिट्टी नूं वेख के मिट्टी भुली, मिट्टी हसी ते मिट्टी रोई, खेड़ खूड़ फिर मिट्टी होई। फिर बाबा बुल्ले शाह ने भी लिखा, कलम उठाया आपने भी कमाल कर दिया। फरमाते ने माटी जोड़ा पुत्र कदी भुलेखे च ना। हमारे नबी अलैहिस्सलाम एक दुआ फरमाया कि अल्लाहुम्मा आरीना हक्की हकायकल अशिया, अल्लाह मैनू हर शै दी हकीकत वखा, मैनू हर शै दी असल वखा। पुत्र असी नकल वेख पागल होण दे दियां, असल है ही जी पुत्र। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते हैं माटी जोड़ा माटी गोड़ा माटी दा असवार, माटी माटी नू दौड़ाए माटी दा खड़कार,
माटी कदम करेंदी यार। और फिर शेर बड़े हैं जी, कमाल किया बाबा साहब ने एंड पे, बाबा बुल्ले शाह ने। आप फरमाते हैं चार सैयां रल खेडन लगियां। कुरान भी तो यही कहता है ना, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन वल्लाह, खेड है जी। आप फरमाते हैं चार सैयां रल खेडन लगियां, पंजवीं विच सरदार, खेड खूड मुड़ माटी होइयां, पौंदियां पैर बसियार, माटी कदम करेंदी यार। और हज़रत जी फिर मैंने अपने सैयदी सियालकोट हकीम अब्दुल्लाई रहमतुल्लाह, हमने देखा हजरत, फिर जैसे जैसे उस बाबे पे हकीकतें खुलती गई, उस बाबे ने भी चुप फाड़ दी। हम 3-3 घंटे आपके साथ महफिलों में बैठे हैं, कोई कलाम नहीं। 3 घंटे बाद फरमाया दुआ करो जी। हमने जनाजे पढ़े आपके साथ, लोग आ रहे हैं, और हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का शुमार उन लोगों में से था कि लोग चाहते थे कि आप कलाम करें और हम आपके कलाम को सुने। 10 मिनट जनाजे तो खलोना पे, आप चुप करके खड़े रहे। किसी और को क्या चल तू बयान कर, बयान नहीं फरमाया करते। एक दिन तन्हाई में अर्ज की, सैयदी जनाजे ते बयान करना कोई शरन कोई नाजायज़ तो नहीं? फरमाने लगे नहीं जायज़। अर्ज की थी हुजूर फिर क्यों बयान नहीं करते? देखो कितने गहरे लोग थे। मुझे आगे से फरमाने लगे मौलवी सुलेमान की करा जनाजे ते बयान करके, माजरत चलो कोई लोग सीखण गई सलाह होएगी। फरमान लगे चलिया जिन्होंने सामने पई मैयत को कख नहीं सीखिया, मैं उन्होंने की सिखाना है? असी पुत्ते चस्कियां च लग गए। फरमाया जिन्हें सामने पई मैयत को कख नहीं सीखिया, मैं उन्होंने की सिखाना है? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਕੋਲ ਕੋ ਦਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸ ਦੇਣਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਬਰਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ? ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। हज़रत सैयदना माशाअल्लाह शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु, और कैसे लोग थे यार, महफिल सजी है, लोग हाज़िर खिदमत हैं, जो अदाब महफिल हैं। पहले अगे वडेरे बाबे हज़रत जी, फिर पीछे जवान, फिर बच्चे, पहले आप वडेरे मुतवज्जे हुए। आपने फरमाया भाई मफहूम है आपकी बात का, आपने फरमाया भाई बाबे हुए गल तो दसो। सारे वडेरे अर्ज करते हैं जी माँ। आपने फरमाया किसान हाल चलाता है, पानी लगाता है, बीज बोता है, अपनी फसल की खिदमत करता है, फिर वो फसल पक जाती है, तैयार हो जाती है। भाई बाबे हुए गल तो दसो फिर किसान अपनी फसल ना की करता है? साहब ने अर्ज की थी हजूर ज़ाहिर पक गई है, किसान वढ़ लैंदा है। इमाम फरमाने लगा भी बाबे हो तैयार रहियो, तुसी पक्की फसल उन्हें किसी वेले भी वढ़ लेना है। ठीक है जी। फिर नौजवान बैठे हुए थे, फिर आप उनकी जानी मत, आपने फरमाया भी जवानों एक गल तुसी भी दसो। मैं अर्ज की थी जी माँ। आपने फरमाया किसान हाल चलाता है, पानी लाता है, बीज पाता है, अपने खेत की खिदमत करता है। एवं निके निके बूटे निकले होंगे ने, एक तूफानी बारिश आती है, सैलाब आता है, उस फसल को जड़ा ना तबाह बर्बाद करके रख देता। सब ने अर्ज की थी जी माँ। आपने फरमाया भी जवानों तुसी भी तैयार रहियो, किते ऐ ना होए किस दिन कोई तकदीर दा ऐसा तूफान आए जड़ा तुहानू पक्कन तो पहले पहले उजाड़ के रख दे। इत्थे पई यही अपनी नमाज़ां पूरियां करो, हलाल खाओ। जवान मुंडे बैठे दे पुत्र, अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत करो। अल्लाह वैसे इस तरह करना नहीं मेरे ख्याल ना चाहिए, ना सूफियां ने इन्हू पसंद किया, लेकिन चलो हुण असीं पहुँच भी तो उत्थे गए कि मेरे ख्याल ना कर देना चाहिए। खलारो हाँ पुत्र हथ किहड़ा जिहड़ा रोज़ अपनी अम्मी ते अब्बू नूं कुट के सौंदा? वेखियो जी वेख लईओ, एवं ना हाथ खलार छड़ियो जिहड़ा रोज़ अपनी अम्मी ते अब्बू नूं कुट के सौंदा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 एडी वड्डी महफिल चल रही, सिर्फ 39 जने जिहड़े रोज़ मां ते प्यो नूं कुट के सौंदे। किहड़ी महफिल दसो जी, किहड़ी महफिल है? कोई ज़ालिम एडी ज़ालिम है, एडा जे तू बचूंगड़ा है, एडा जे तू बचूंगड़ा है। जे तू पुत्र जो प्यो बनेगा तेन फिर पता लगेगा तेन उन्हें पालिया किवें। अज तेरे कल इन्ना भी कटिया वैड़िया टाइम है नहीं कि तू राती मां ने तो प्यो नूं कुट के सुन।
बातें बड़ी हैं इधर जी। रजवी साहब मेरे वालिद साहब अल्लाह उस बाबे दी कब्र ते लखा रहमत करे, मैनू बना गया जाने। मैं अपने वालिद के बुढ़ापे की औलाद हूं, 17 साल बाद पैदा हुआ, गुजर बरादरी है, डंगर शंगर रखे सन। सिर्फ एक दिन मेरे अब्बे ने मेरे अबू जी ने मज्झां नूं पट्ठियां पांदे वेख्या, अगले दिन मेरे पुत अबू ने डंगर वेच छड़े कि मैं मुंडा पढ़ाना है, डंगर वेच छड़े। ठीक है जी, पढ़ाया, वडेरे वेले पढ़ाया, 60 साल तक नौकरी की, क्योंकि जो नौकरी ना करते फिर मैं पढ़ नहीं ना सकता। बस कोई वक्त आया, मैं अपने अबू जी के साथ किसी दफ्तर में चला गया, वहाँ मेरे अबू जी ने अंगूठा लगाना था, सिम लेने गए यू फोन के दफ्तर, अबू जी अंगूठा लान ते अंगूठा ना आए। बड़ी काकी बैठी सी ना उत्थे, वो कहने लगी आप इस तरह करें कि बाजार से कोई लोशन ला के जरा इनके अंगूठे को लगाएं, तो फिर आए तो अंगूठा लग जाए। मैंने अबू जी को दफ्तर बिठाया, नीचे गया जी लोशन लेके आया। मैंने हजरत अपने अबू जी के अंगूठा उस दिन पहली बार देखा। मैंने जब लोशन लगाया तो क्या देखा, अबू जी के अंगूठे होते लिखे को, क्योंकि वापडा में मुलाजम थे, तारा खिंचनियाँ, प्लास फड़ना, सख्त काम करना। वो देखा तो अंगूठे पे लाइन ही नहीं थी, ना होने के बराबर थी। वो दिन अपने अबू जी ने पूछा, अबू जी लड़ियाँ लैना कितने गई? थोड़ा दुख भी था, थोड़ी खुशी भी थी। फरमाने लगे यार तेरियां लैना बनाते बनाते मेरियां मिट गई। हाँ पुत्र, ये आपको तब पता चलेगा जब आप खुद वालिद बनो। एडी वड्डी महफल सिर्फ 39 बंदे ने हथ खला रहे, जैसी रोज अपनी अम्मी अबू को कोट के ये हालात है। कौन सी महफल, केड़ी महफल? नहीं पता। अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अपने वालिदैन की खिदमत, नौकर पुत्र भर्ती हो जाओ, किते और नौकर नहीं हो, बादशाहियां करो, अफसर लग जाओगे जिथे जाओ, लेकिन शर्त पहले है जे कि पुत्र इन्हां दे नौकर हो जाओ। वो बायजीद 40 साल हज़रत जी बिस्ताम के जंगलों में चिल्ला कशी की, मकसद नहीं मिला। 40 साल बाद का चल बायजीद रब लबन निकले हो तो लब्बा कोई नहीं, चला माँ की जियारत करिए। चल जब आए तो रात का वक्त था, दरवाज़ा नहीं खटखटाया कि माँ की नींद खराब हो, बाहर ही बैठ गए। अंदर से पानी आया जो इस बात की निशानी थी कि अम्मा जी तहज्जुद के लिए उठ गई हैं। आपने तहज्जुद पढ़ी, फिर हाथ खड़े कर दिए। हज़रत बायजीद कहते हैं मैं सुन रहा था, मेरी माँ अल्लाह के हुजूर क्या अर्ज़ करती है, रब्बा तेनू लबन निकले, तेनू कौन लब सकता है, तेनू कौन लब सकता है, या अल्लाह मेरे बायजीद ते रहम कर। आप फरमाते 40 साल की इबादत से वो नहीं मिला जो उस वक्त माँ की दुआ से मिल गया। पुत्र कुटिया करो, कुटिया करो पुत्र, अपने वालिद साहब मुंडे दबाया करो। और चलिया यो ही मुंडे ने ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਚ ਇੰਜ ਹੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਏ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦਬਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਥੱਕ ਗਏ ਦੇ ਨੇ ਪੈਰ, ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਭੁੱਖਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦੀ ਜਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦੀ ਟੁਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ तेरे लिए फैज ही फैज। इनको राजी करो। अच्छा मैं एक और बात आपसे फिर पूछता हूँ, माँ के वालिद, चलो वालिद की तो बात हो गई, माँ की भी। मेरे लिए सबसे मुश्किल तरीन काम हजरत बाजार जाना है, मैं जाता भी नहीं, मिलने मिल जाते हैं फिर बड़ा कुछ होता है, मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन जब कभी जाया करता था ना, तब भी कोशिश होती थी कि जल्दी निकलूँ, लेकिन मैं जिसको साथ लेके जाता हूँ वो माँ है, मेरे बच्चों की माँ। तो क्या होना, मसलन मैंने कहना ये ठीक है चल ले बस निकली है, तुम लोग इकट्ठे होने शुरू, नहीं अदर एक बारी वेख, तो क्या करती है बच्चों के साथ लगा के चेक करती है, नहीं सोना नहीं जुत्ती लैंड तो जो फिर है, और मैं कहना जुत्ती नहीं एक बार जरा चेक कर, वो इधर टोर के वेख, वेखो ना सज्जन नहीं है, मैं सीखता हूँ। सच बताना जी, कभी तुझी मां नूं लै के गए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ। ਕਦੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ, माँ दे पैरे जुती पवा के चेक की थी, पुत्र हम तो इनका बदला ही नहीं दे सकते, हम इनका बदला नहीं, और जो इन्होंने हमें दिया हमसे ये मांग भी नहीं रहे। सिर्फ इन्ना कराया करो, कम से कम को अद्धा घंटा माँ कल बह जाया करो रोज,
कम अज कम को अद्धा घंटा पौना घंटा कोई अपने प्यो कर बैया करो, सुनिया करो ओदी भी गल। वो बड़ा कुछ तुहानूं कहना चाहता है, तेरे का टाइम ही नहीं सुनने को। और याद रख पुत्र, अगर आज तू नहीं ना सुन रहा तो बारी तेरी भी है। और मौलाना रूम ने इसको बाकायदा हिकायत किया। आप फरमाते हैं, और मैंने देखा जी, पहले मैं समझता था शायद बुजुर्ग कर देते हैं, नहीं, मैंने देखा अपने मुआशरे में होता है इस तरह से। को बाबा सी बुढ़ा हो गया, उन्हें खंगना करना रात में। एक दिन बुढ़ी कहने लगी कि सारी रात तेरा अब्बा खंगदा रहता, सारी रात सारा दिन मैं काम कर कर थकी हुई है, राती तेरा अब्बा नहीं सौन देता, ऐसा कुछ कर। वो कहने लगा फिर की कर? उन्हें कहनू डंगर वाले कमरे छड़, इनू डंगर वाले कमरे छड़। पुत्र आके प्यो नूं कहंदा, भाई सारी रात खंगदे रहंदे हो, मैं भी दिने मजदूरी कीती हुंदी है, नूं तुहाडी ने भी सारे दिन काम कीते हुंदे ने, ना मैनू नींदर पैंदी ना उन्हें नींदर पैंदी। प्यो सी ना कहंदा, अच्छा फिर पुत्रा की चाहना? उन्हें कहा, भाई तुसीं डंगर वाले कमरे च टुर। उन्हें कहा, पुत्र जे मैं डंगर वाले कमरे टुर जा फिर तू राजी? उन्हें कहा, हो भाजी फिर तुसीं खंगोगे भी नहीं, खंगोगे तो उत्थे खंगोगे, आवाज़ ही नहीं आनी खंगन की, कोई सुकून की नींदर पेगी सानूं, सिरे वो भी ठीक रहेगी, मैं भी ठीक। प्यो ने कहा, ठीक है पुत्र, जिवें तेरी खुशी है। पुत्र ने कंबल फड़िया, आबे नूं छड्डण चला। पोतरा अगे आया, उन्हें दादे दे तू कंबल खोल लिया। कंबल खोल के ना थले लत्त रख के तो उन्हें विचों कंबल पाड़िया, अद्धा दादे नूं दे छड़िया, अद्धा कोल रखिया। वो प्यो कहन लगा, पुत्रा क्यों दादे दा कंबल अद्धा अद्धा कर छड़े? घर ढेर कंबलों के पे दे ने, उथों ले लेना सी, ये कंबल क्यों अद्धा कीता नहीं? उन्हें कहा, बाजी तां अद्धा करके कोल रखिया है, जो तुसीं खंगोगे तो तुहानूं भी अद्धा देख के डंगरां ने कमरे छड्ड के आऊंगा। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। जब तू मां दे नहीं ना कुटन डिया ते पुत्र कल नूं कुटने तेरे भी किसी ने। जे तू अज अपने अबू जी दे पैर नहीं ना कुटन डिया पुत्र, कुटने तेरे कल किसी ने नहीं। अज उन्हां दे कुट लै, कल को तेरे भी कुटेगा। अज उन्हां दी खिदमत कर लै, कल को तेरी भी करेगा। अज उन्हां नूं पुछ लै, कल को तेनू भी पूछेगा नहीं। और पुत्र जिवें दे ऐसी सैंपल जवान करन दे ने, इन्हां ने ते जरूरी रखना भी नहीं है सब। ये आप मना रहे हैं ना मदर डे, ये हम जा रहे हैं आहिस्ता से। मदर डे किधर से आया? या तो हर लम्हा मदर डे है, या तो हर लम्हा फादर डे है। क्या कुरान ने कहा है कि भाई एक दिन अम्मी दा ते एक दिन अबू दा? बल्कि कुरान तो कहता है उफ़िम वला तनहरहुमा, उफ़िम वला तनहरहुमा। कुरान ने तो कहा ही नहीं कि एक दिन व बिल वालिदैन एहसाना, बल्कि कुरान कहता है जब तक ये तुझ में मौजूद है तूने इनके साथ एहसान ही करना नहीं। या आप ले आए मदर डे? ये मदर डे यूरोप की पैदावार है, जो अपनी अम्मी और अब्बू को जाके ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं। ये एक दिन उन्होंने रखा हुआ है, भाई एक दिन जाके अपनी अम्मी से अपने अब्बू को मिलना है। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में हर लम्हा वालिदैन की खिदमत है। इसलिए पुत्र इनकी कदर करो। मैं अपने माशरे में देख रहा हूँ बड़ी बेकदरी, और स्पेशल हमारे बाबों की बड़ी बेकदरी। बाबे कदी चाह वाली दुकान, कदी उत्थे कदी उत्थे कदी उत्थे बह के अपना अपना टाइम लगाते हैं। मैं जब आज अपने बेटे को देखता हूँ ना, छोटे को, तो मैं अल्लाह क्या उसके लाड़ लडाऊंगा। अल्लाह ने 4 देते थे, तो फिर मुझे अपनी बुरी याद आती है कि हर जिन 17 साल बाद रावण देता है, उन्हें किन्ने का लाड़ लड़ाए। मैं क्या लाड़ लड़ाऊंगा, मेरे 4 नहीं, लेकिन जिन्होंने रब ने 17 साल बाद देता है, उन्हें किन्ने का लाड़ लड़ाए। मैं तो बदला दे ही नहीं सकिया, बड़ी छेती मेरे बूजी पर मैं तो बदला दे ही नहीं सका। लेकिन आज भी कुछ कुछ याद पड़ता है जब अबू जी उंगली पकड़ के मुझे लेके जाया करते। आज भी कुछ कुछ याद पड़ता है जब अबू जी अपने कंधों पे बैठा के मुझे लेके जाया करते। इसलिए पुत्र मैं तो वो हूं जिसके पास ना माँ है ना बाप है। इसलिए हाथ जोड़ के सबके आगे अर्ज करूंगा, पुत्र जिस जिसके पास है इनकी कदर कर लो, जिस जिसके पास है इनकी कदर कर लो। अन करीब वो वक्त आना है जब ये नहीं होंगे। आज अल्लाह ने बड़ी इज्जतें दी, आज दुनिया में नाम है हजरत, हर सब कुछ है मेरे पास, नहीं है तो मां नहीं, नहीं है तो वालिद नहीं है। अल्लाह ने गाड़ी नहीं गाड़ियां दे दी हजरत, बिल्कुल नई गाड़ी अल्लाह ने दी हजरत। आपको बता नहीं सकता कितने आंसू ऐसे हैं जो मैं बाहर नहीं गिरने देता, जो अंदर गिरते हैं। जो जिस दिन मैंने ये नई गाड़ी खरीदी ना, मुझे मेरे अल्लाह ने दी, तो मैं अपने बच्चों के सामने नहीं रोया। मर्द को रोना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं हजरत कहीं जाके बड़ा रो, क्योंकि सब मेरी गाड़ी पे बैठे। नहीं थी तो मेरी माँ नहीं थी बैठने, नहीं था तो वालिद नहीं थे बैठने के लिए। दिल किया, तड़फी रूह अंदर से, दिल मचला, काश आज अम्मी जी होती। मेरी नई गाड़ी मुझे मेरे अल्लाह ने दी है, मैं दरवाजा खोलता, अपनी अम्मी का हाथ पकड़ के अगली सीट पे बैठाता। हजरत
सारे ही बैठे हजरत, वो भी बैठा, वो भी बैठा, वो भी बैठा, वो भी बैठा। नहीं बैठी तो माँ नहीं बैठी, सारे बैठे हजरत, नहीं बैठे तो अबू जी नहीं बैठे। इसलिए जिसके पास ये है इनकी कदर करो। ओए ठीक है हजरत सुल्तान बाहू ने क्या आपने फरमाया, मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लाख करोड़ा हज्जा हूं। वो एक रमज है, वो एक राज है। किबला शाह साहब बैठे हैं, पीरो मुर्शिद ने मुझे भी इजाजत दे दी, मुरीद भी हैं बड़े, लेकिन मेरे लिए ये नहीं है हजरत जी। लेकिन वालिदैन कौन है? जिनके लिए अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं, जो एक बार इन्हें मोहब्बत की नजर से देखेगा अल्लाह मकबूल हज का सवाब देगा हजरत। यार जिसके पास है आज कर लो राज राज के, आज जिसके पास है आज कर लो। ये तो वक्त तो गुजर रहे हैं, काले वाल मुसाफिर हुए चिट्टे अंडेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत सनी अज नचदे ने ससी मोर बागी, नाले वजन रबाब तंबूर अड़िए, न खाम ख्याल दे खैमे दी टुट जानी एक दिन तना, लोए लोए पर लै कुड़िए जे तुद पढ़ना पढ़ना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद ते कर जांदी परो पुत्र पढ़ना टाइम जाता जी। और ये बस मैं मुख्तसर करूँगा, ये पुत्र जड़े चावां च असीं भेजदे ना चाह ही हकीकत इन्हां दा कोई था। इफ्तिखार साहब मेरे एक मुक्तदी हैं, फौत हो गए, उनका ये दांत सोने का, शाह जी की बिला जी ये वाला, आपको पता कभी रवाज रहा है सोने का दांत लगवाने का, लोग लगवाया करते। मैंने कई बार हजरत को कान में अर्ज करनी हुजूर है लोहा छोड़ो, मर्द के लिए सोना मुतलक ना रहा, किसी सूरत में भी जायज़ नहीं। उन्होंने भी हर जुम्मे मुझे कह के नहीं हजरत जी अगली बार आवांगा तो दांत नहीं होगा। बस एक दिन रात को सोते में हार्ट अटैक आया और हजरत का इंतकाल हुआ। सुबह जो फजर के लिए नहीं उठे, बच्चों ने जाके कमरा खोला, हाजी साहब का इंतकाल हो चुका था। बहरहाल वो फिर भी हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने कहा ये तो रात के फौत हो गए। मुझे उनके बेटे का फ़ोन आया, हाजी साहब फौत हो गए। मैंने कहा जी अल्लाह बख्शिश फरमाए, ये जनाजे का क्या करना है जी, आप बताएं क्या कर, आप कब तक सियालकोट? मैं उस दिन फैसलाबाद था। मैं इंशाल्लाह सुबह आ जाऊँगा। उन्होंने कहा जी जोर के बाद जनाजा। बदल जी 5 पुत्र थे नहीं है, उन 5 का वखरा वखरा फोन आया, की भला हजरत जी दंदा का डॉक्टर बुला के भाई का दंद कढ़ा लीए। उन 5 को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि शरीयत में इस वक्त दांत के लिए क्या हुक्म है, ये साथ जा सकता है कि इसको निकलवा लेना चाहिए। 5 एक ही होल पैन डे असी अब्बा एक दंद नाल लै चले, इन्होंने पुत्र दंद भी नहीं जो नाल लैके जाते, इन्होंने दंद भी नाल लैके। बल्कि मियाँ साहब क्या कहते हैं, जांदी वारी क्या डराउना बने, जांदी वारी क्या डराउना बने, डरदे हथ नहीं लाते। आपके ख्याल में मुर्दे को गुस्ल देने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी को 6 साल का डिप्लोमा करवा रही है, को पंजाब कॉलेज को कोर्स करवा रहा है उसकी, क्यों नहीं फिर देते अपनी मैयतों को गुस्ल? मुर्दे नवाने वाले कितों निकल आए? वजह जांदी वारी क्या डराउना बने, डरदे हथ नहीं लाते। जांदी वारी क्या डराउना बने, डरदे हथ नहीं लांदे। जना लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे, उत्थे अमलांदे होने ने नवेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछ। उत्थे आई पूछा जाना 10 बंदे करके की, अज वक्त है मेरे बच्चे कर लो पुत्र, कर लो पुत्र 5 वक्त की नमाज। वो चले हो सब नाल औखी नमाज ही हो गई तेरे लिए। अच्छा 24 घंटे चलो बनते हैं, इन 24 घंटों में से फजर की नमाज को कितना टाइम देते हैं? मैं कहता हूँ चलो 15 दे लो, वो भी अगर जमात से पढ़ें तो, कलियाँ पढ़ेंगे तो 2 मिनट, चलो मैंने जमात के काउंट किए, जमात दुआ 15 हो गए जी। जोर को कितना देते हैं? मैं कहता हूँ चलो 20 दे लो, अलाउते नहीं इतने एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ मैं। 15 दे भी किन्ने हो गए जी? 45 हो गए, 35 हो गए। असर में कितना देंगे हो? 10 दे लो जी, किन्ने हो गए जी? 45 हो गए। मगरब में कितना देंगे? 15 दे लो चलो, मगरब कितना हो गया? फिर पूरा 1 घंटा हो गया। शाम को कितना देंगे? 20 मिनट दे लो। मैं कहना चलो 5 दे लो। मैं तेन सवाल करना, वो बंदे कैसा बंदा है? वो तेरे को 24 घंटे चो अपने अल्लाह लई 1 घंटा ते 5 मिनट भी नहीं है। तू बंदा ही है ना। और शाह जी दुख है होंदा है हज़रत जी कि
कुल दे खत्म ते जाओ मस्जिद नक्को नक भरी, 10वीं दे खत्म ते जाओ मस्जिद नक्को नक भरी, 40 ते जाओ मस्जिद नक्को नक भरी। जिस शादी ते निकाह पढ़ान टुर जो मैरिज हाल सारा पढ़े, मंगनी ते रश, दिहाड़े ते रश, वलीमे ते रश, सगना ते रश। ठीक है जी। इसी तरह ना जी मैं आपसे पूछने लगा पुत्र, याद रखिए अन करीब एक दिन आना जी जिस दिन सारा कुछ सामने रख के तुम्हारा अल्लाह तुमसे पूछेगा, बंदे दस किहड़े कोल तू छड्डे, किहड़ा 10वां तू छड्डिया, किहड़ा 40 तू छड्डिया। फर्ज तो नहीं 10वां, वाजिब तो नहीं है। 10 किहड़ा निकाह तू छड्डिया, 10 किहड़ा वलीमा तू छड्डिया, 10 किहड़े तेल तू छड्डिया, 10 किहड़ी मंगनी तू छड्डी। बंदिया वे लिखिया दा है हर साल नारान तू गया, मरी तू गया, कगान तू गया, मालम जब्बा तू गया, सवात तू गया, बहरैन तू गया, सकरदू तू गया, खुंजराब बाईपास तू गया, बहुते पैसे सन ते तुर्की गया, और बहुते पैसे सन ते स्विट्जरलैंड गया। बंदिया सानू सिर्फ एक गल का जवाब दे, तेरे मल्ले साडा कार सी उत्थे क्यों नहीं है। और पूछना नहीं पुत्र, उन्हें पूछना नहीं, ऐमी ना मारे जाए, उन्हें पूछना नहीं। इनकी मेरी उनकी बात नहीं, कुरान की बात है। सूरह मुद्दस्सिर अल्लाह कहते हैं जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, क्योंकि कुरान वो है जो हो गया वो भी बताएगा, जो हो चुका है वो भी बताएगा, जो होने वाला है वो भी बताएगा। कुरान कह रहा है जी सूरह मुद्दस्सिर, अल्लाह कहते हैं जो आले जन्नत है ना वो आले जहन्नम से पूछेंगे, फी जन्नती यतसालूना अनिल मुजरिमीन मा सलकाकुम फी सकर। जन्नत वाले जहन्नम वाले ने पूछा, ओ भाई जहन्नम च किवें आ गए तुसी? तो पहला जवाब क्या देंगे जहन्नम में आने की वजह का? औलू लम नकु मिनल मुसल्ली, वो कहेंगे असी नमाज नहीं सा पढ़ते। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, बाकी सब बात पढ़ो, नमाज पढ़ो। और दुख पे दुख ही है, शादी दे जी किन्ने कार्ड आते हैं? एक ही आते, या नाई लैके आएगा तो या कोई बंदा लैके आए। लेकिन की है जनाब, शादी का कार्ड आंदियां तैयारियां शुरू, सूट जुत्ती वेस्टकोट सारा कुछ। लेकिन दुख की गल है इत्थे उथों उस मस्जिद चू सुनिया, उस मस्जिद चू सुनिया, उस मस्जिद चू सुनिया, उस मस्जिद चू कोई जाना ही नहीं है। सुनिया ही ना मेरा पुत्र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुनिया ही ना मालिक दा शान, कोई जाना ही नहीं है। फजर वेले सुनिया, फिर जोर वेले फिर सुनिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। एक कार्ड ब्याह दा, एक कार्ड, या कोई बंदा या नाई है, ऐसे रब दे घरों सुनिया आ रहे हैं। फिर असर वेले फिर सुनिया, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फिर सुनिया असर वेले, मगरिब वेले, शाह वेले, हय्या अलस सलाह। खत्म तो मैं आख छड़ना ना, को बुलाए नहीं बुलाना, गुस्सा लगता लगे। मैं तो खत्म तो साफ लोगों को कह देना, मैं कहना यार कुछ तो अपने रब नाल वफा कर छड़ो, कुछ तो वफा कर छड़ो। जे खत्म तो आए हो ना, एक सुनेहा ते, एक टैलीफोन ते, एक पैगाम ते आए हो ना, खत्म ते आए हो ना, विआह ते, फिर कम से कम रब नाल ऐनी क वफा कर छड़ो। या तो फिर ऐ करो, आज तो बाद जिथे कितू सुनेहा आए ना, टका के अगले नूं जवाब देना, उन्होंने कहना भाई गल सुन, मैनू मेरा अल्लाह बुलाए तो मैं कभी मस्जिद च नहीं गया, एडा तू वेला मैं तेरे विआह ते मैं नहीं आना, लेकिन तुसी कभी भी नहीं किया। फिर पुत्र ही कह के मत जोड़न लगा। पुत्र फिर एक ही होया, बंदे नूं आ रब नूं ना, बंदे नूं हाँ रब नूं एक ही। या तो फिर बंदे ने भी ना करो, कोई खत्म नहीं अज तो बाद जाना सी, किसी शादी ते नहीं जाना, किसी सालगिरह ते नहीं जाना, किसी मंगनी ते नहीं जाना।
ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्ला